Now the next concentration measurement terms is parts per million. Okay, so listen to me. This is another concentration measurement terms which is basically used to used when solute is present in trace quantities. The formula of parts per million is ppm. Suppose we are calculating the ppm of component A. It's mean A is a solute in any particular solvent. Then parts per million of A will be equals to mass of component A upon total mass of solution. And this term is multiplied by 10 की power 6. Listen to me about parts per million. Parts per million is another concentration measurement terms which is basically used when the solute is present in very trace quantities, very minor quantities in any particular solution. Okay, yeah, solvent. Suppose you have a suppose you have a solute present in a solution which is present in very trace quantities. Then parts per million of A will be mass of component A. We have to need the mass of component A upon total mass of solution and multiply by 10 की power 6. Okay, एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल में लिखना है आपको. सपोज a liter of water contain about 3 into 10 की पावर -3 ग्राम of chlorine. Then ppm parts per million of chlorine equals to mass of component A. here A is क्या है? क्लोरीन. उस जिसका मास कितना है? 3 into 10 की पावर -3. 3 into 10 की पावर -3.
upon total mass of solutions. You know that a solution is a liter. A liter means 1000 gram. Okay, and now multiply by, here in the formula it is 10 की power 6. So here we have used 10 की power 6. Clear? Now we have to calculate this. You know that here this is 10 की power minus 3. 10 की power minus 3 means it will, when it will goes to the denominator, it will be 10 की power 3. I mean इसको we can write this 10 की power 3 here. ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देंगे. यहाँ -3 था, नीचे जाएगा तो +3 हो गया. अब यहाँ थाउजेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं? 3. तो ऊपर क्या बच गया? केवल 3. क्या बच गया बेटा? 3. Because here 10 की पावर -3 goes to the denominator, it will be 10 की पावर 3. In the numerator it is only 3. Here this is 1000s. Here 1000s means 10 की पावर 3, or the another 10 की पावर 3 is here from this, and here 10 की पावर 6, this value. ओके, देखिए यहाँ 3 है, 10 की पावर -3 जैसे नीचे जाएगा तो +3 में हो जाएगा. ये वाली वैल्यू तो मैंने ये लिख ली. अब ऊपर क्या बच गया? इस 3 के मल्टीपल में केवल 10 की पावर 6 है. ये 10 की पावर 6 मैंने यहाँ लिख रखी है. अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 1000 दे रखा है यहाँ, और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3. एक 10 की पावर 3 हो गया, एक 10 की पावर 3 हो गया. ऊपर क्या था? 10 की पावर 6. इनका मतलब 10 की पावर 6 ये. इन दोनों वैल्यू से क्या कैंसिल हो जाएगा? ये क्या निकल के आएगी वैल्यू? इट विल बी 3 ppm. क्लियर मेरी बात बेटा? क्लियर हो गया? हाँ, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, ध्यान रखना है. दिस कंसंट्रेशन मेजरमेंट तब यूज करनी है अगर सॉल्यूशन के अंदर काफी माइनट या ट्रेस क्वांटिटीज में दे रखा है. ठीक है, तब हमें ये पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स यूज करनी है. क्लियर मेरी बात? सपोज a liter of water contain about 3 into 10 की power -3 gram of chlorine. Then you have to calculate this value in parts per million. I mean parts per million of chlorine will be mass of component. mass of chlorine चाहिएगा हमें. mass of chlorine कितना दे रखा है यहाँ? 10 की पावर 3 into 10 की पावर -3. ये वैल्यू मैंने यहाँ रख ली. ओके, नीचे चाहिएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. हमें पता है वैल्यू दे रखी है a लीटर. 1 लीटर में 1 लीटर मीन्स थाउजेंड्स हो गया यहाँ. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6. कैलकुलेट करने के बाद में हमारा 3 ppm आएगा. बेटा क्लियर मेरी बात नहीं है? अगर मैं यही वैल्यू, ध्यान रखना है, अगर मैं यही वैल्यू अगर मैं निकाल के चलूँ, बल इसका मास परसेंटेज निकालूँ, मास परसेंटेज की टर्म में निकालूँ, तो ये वैल्यूज हमें कुछ, ये वैल्यूज थोड़ी अलग आएगी. ठीक है, मास परसेंटेज में थोड़ी डिफरेंट आएगी. ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट, अगर वैसे वैल्यूज हम कैलकुलेट करें तो मास परसेंटेज में ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आएगी. ध्यान रखना, पार्ट्स पर मिलियन में अलग आएगी, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन केवल तभी यूज करना है अगर सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में दे रखा है. क्लियर मेरी बात? तो यहाँ ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी? 3 ppm. ठीक है, I hope you have cleared this topic. Next, another and the last concentration measurement terms is, this is 8 formality. The next concentration measurement terms is formality. ठीक है, देखिए यहाँ, when
solute is ionic. When solute is ionic, like NaCl, KCl, KNO3, NaCl, KNO3, etc., which do not exist as discrete molecules, then their concentration is measured in terms of formality. Okay, if you have an ionic compound in any solutions which is totally discrete molecules, then their concentration is measured in terms of formality. Then we have to use the formality concentration measurement terms. Okay, the formula of formality will be formality equals to number of formula mass of solute 2 upon में volume of solution in liter. Okay, listen to me again. The next concentration measurement terms is formality. When solute is ionic, okay, when solute कैसा हो, आयनिक हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो कैसा एग्जिस्ट करता है एक्चुअली डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह में, देन हम कंसंट्रेशन मेजर अगर यूज करनी है उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूट की, आयनिक सॉल्यूट की, तो हमें फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स यूज करनी पड़ेगी. और फॉर्मेलिटी के अंदर हम कैसे, फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट. जो सॉल्यूट है उसका फॉर्मूला मास चाहिएगा एक तो, और नीचे क्या चाहिएगा, वॉल्यूम. क्लियर मेरी बात? तो ये हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स हो गई फॉर्मेलिटी. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स है ये काफ़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, इससे पहले जो हमने 7th कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स करी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ये जो हमारी जो सारी कंसंट्रेशन मेजरमेंट टर्म्स है वो कंप्लीट हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल या जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही.